Dear friends, greetings to you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So, thank you so much for joining in this special prayer today मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस खास सभा में जुड़ने के लिए, because Jesus Christ all the time watching over us. क्योंकि यीशु मसीह है जो हर समय हमारे ऊपर नजर रखता है। So, this particular time you are spared and giving to the Lord will surely remember this and honor you. जो ये खास समय आपने अपना परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर इसको जरूर उसने याद रखेगा हमेशा और आपको उसके लिए वो So, इनाम देगा। today we are going to meditate very important things from the Word of God. आज हम कुछ खास बातें परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। So every one of us, we are going through different type and the phases of the problems in our lives. हम में से हर कोई अलग अलग तरह की मजबूरी परेशानियों में से अपने जीवन में से गुजरता है। Everyone in our mind and heart, different kind of the thinkings, different kind of the sorrows, worries, many things. हर किसी के पास में उसके तरीके की परेशानी है, उसके तरीके का दुख है और हम ऐसे ही जीते रहते हैं। But as a believer, we are the children of God. Jesus Christ already blessed us with all the blessings, how we can protect ourselves, how we can come out of the present problem you are going through. यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते परमेश्वर ने हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है कि जिस भी परेशानी मुश्किलों में से हम होके जाएंगे उसने उसके हल निकाले हैं, रास्ते निकाले हैं हमारे लिए। So if we are understand this very much detail in our life, we will face any type of problem. अगर हम इन बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम किसी भी तरीके की मुश्किल परेशानियों को अपने जीवन में उसका सामना कर सकते हैं। Jesus never told in the Bible, I will never give you any problem. यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसा बाइबल में नहीं कहा है कि मैं कोई मुश्किल नहीं दूंगा तुम्हें। In this world, we must have the problem. इस संसार में जरूर होगा भी कि हमें मुश्किलें आएंगी। But the situations God is allowing us, He is a very loving God. He never give any kind of the unwanted things in our life, Bible says. क्योंकि परमेश्वर ऐसी बातों को अलाउ करता है हमारे जीवन में कि हो, और वो कभी भी हमें उससे ज्यादा नहीं देता जो हम ना सहन कर सके, ऐसा बाइबल कहती है। Bible clearly says God will never do any evil in our lives. परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर कुछ भी बुराई हमारे साथ नहीं करेगा। Sometimes the situation we are going through, that is mostly because of our decision, our doing, because of us. We are going through this problem. कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें परेशानियां आती हैं वो हमारी ही वजह से होती हैं और हम उनमें से गुजरते रहते हैं। So today, whatever may be the problem you are going through, please remember that the God's word is so powerful to deliver you and to help you. चाहे आप कोई भी मुश्किल परेशानी में से होके गुजर रहे हो, कि आज आप याद रखें कि परमेश्वर का वचन है जो आपको छुटकारा दिलाएगा। You should remember the word of God written in the Bible very specially to come out from the problematic situation we are going through. आपको हमेशा परमेश्वर के वचन को याद रखना है जब उन मुश्किल परेशानियों में से बाहर निकलने के लिए। So several times in our mind there is a war. बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है। Because the reason it may be many things. और बहुत सारी उसकी वजह हो सकती हैं। There is a war in our inside the mind and the heart. हमारे दिल और दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है। The same way in our home, physically also there may be a war in our homes. और ऐसा ही वास्तविकता में आपके घरों में भी लड़ाई झगड़े होते होंगे। Fight between two people to destroy the peace. दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है शांति को खत्म करने के लिए। Different situations. अलग अलग वजहें हो सकती हैं। For the property. आपके धन दौलत के लिए। So because of the property there is a issue and court case problem, fight. आपकी धन दौलत के लिए लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं। Evil people. जो बुरे लोग होते हैं। Evil people to put us in problem, they used to create a problem. जो बुरे लोग होते हैं वो ही हमें मुश्किलों में डालते हैं और हमेशा मुश्किलों की योजनाएं हमारे लिए बनाते रहते हैं। Many, very specially nowadays, the married couple, they are going through lots of problem. The girl or boy, they used to put lots of false case for the divorce and many things for money,
This is the present world. हम आज के संसार में देखें, बहुत सारे लड़के लड़कियां जिनकी शादी हुई है वो आपस में इतना झगड़ा करते हैं और पैसे के लिए वो एक दूसरे के खिलाफ झूठे केस कोर्ट में डालते हैं। So these are the many kind of the problems we are facing every day. और इस तरह की बहुत सारी मुश्किल परेशानियां हम अपने रोजमर्रा की जीवन में देखते हैं। But what Bible says to come out this kind of the problematic situation? अब बाइबल क्या कहती है इन मुश्किल परेशानियों में से निकलने के लिए? So many families, the children are going away from the Lord because of that problem. और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे परिवारों के दूर हो जाते हैं परमेश्वर से इन मुश्किल परेशानियों की वजह से। So many families, husband used to go through some kind of the addiction, such a way because of that problem. कई बार घरों में अगर मुश्किलें होती हैं, जो हस्बैंड होता है वो बुराई और बुरी संगतियों में पड़ जाता है, पीने की या सिगरेट पीने की या शराब पीने की, ड्रग्स लेने की। So sometimes some family they may go through the financial problem because of the reason they may take loan for something to fulfill their worldly desires. Because of that debts there may be problem. और कई बार ऐसा होता है घरों में लोगों का अपना रहन सहन इस तरीके का होता है जो उसे पूरा नहीं कर सकते और उसके लिए वो बैंकों से लोन लेते हैं और वो उस लोन के नीचे आते रहते हैं। These are the things destroy our peace. और इस तरीके की बातें हमारी शांति को खत्म करती हैं। We are not able to pray to the Lord with the peace of God. हम उस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते जो हमें शांति में हम कर सकते हैं। Several times we like to pray and read the Bible, but there is no peace of mind. बहुत बार हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, पर हमारे दिमाग में शांति नहीं होती। So today, whatever may be your situation, the Lord Jesus Christ is going to be help you to come out of the problem through the word of चाहे God. आपकी आज कोई भी मुश्किल परेशानी हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह हमारी मदद करेगा उसमें से बाहर निकलने के लिए। So Isaiah 54:17, the Bible says, यशाया 54 उसका 17 इस तरह से कहता है। Isaiah 54:17 says, no weapon formed against you shall prosper. ये इस तरह से कहता है कि तेरी हानि का कोई भी हथियार बढ़ने ना पाएगा। We have to believe that no weapon formed against me, it will never prosper. और इस बात को हमें यकीन से पकड़ लेना है कि कोई भी वो हथियार हो वो बढ़ने नहीं पाएगा। So that means the weapon of the weapon of the evil, through the evil people, we are targeted many times. और कई बार ऐसा होता है जो शैतानी लोग होते हैं वो जो हथियार हमारे ऊपर घात करने के लिए बनाते हैं वो ऐसा करते हैं। But Bible very clearly says, whatever may be that weapon, we have to trust in the Lord. That will not touch us, that will not swallow us. और बाइबल साफ साफ कहती है चाहे वो कोई भी और कैसा भी हथियार क्यों ना हो वो हमें ना छू सकेगा, ये परमेश्वर का वचन है। So Numbers 23:23 says, गिनतियों 23 और 23 कहता है, no tricks will work on the people of Jacob, no magic works against Israel. उसमें इस तरह से लिखा है कि कोई भी युक्ति शैतान की याकूब के घराने के खिलाफ और कोई भी जादू टोना उस पे काम ना करेगा। So Bible very clearly says, no any kind of the trick the evil people used to do, they will not touch us. और बाइबल साफ साफ कहती है कि शैतानी लोग चाहे कोई भी युक्ति बनाए वो आपको नहीं छू सकती है। So the kind of the worldly peoples used to do this black magic, this and that will never work in our life. जो संसारी लोग बहुत सारे जादू टोने करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। So because the protection is from the Lord. क्योंकि हमारी जो रक्षा है परमेश्वर करता है। So because we are going through the situation, for this situation the Lord is preparing us also to protect from all these kind of the weapons and the evil plans. जब हम मुश्किल परेशानियों में से जाते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बचाता है उन हथियारों से जो शैतानी लोगों ने हमारे लिए बनाए होते हैं। Psalm 144 verse 1 very clearly says, I will praise my Lord, the Lord, my rock, who used to train my hands for war, my fingers
for the battle. भजन संहिता 144 उसका 1 इस तरह से कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वे मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। So very clearly the Bible clearly says the Lord is give training to our hands for the warfare. इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि परमेश्वर आपके हाथों को तैयार करता है उस लड़ाई के लिए, Our fingers for the battle. और हमारी उंगलियों को उस लड़ाई के लिए। So such a loving father we are having, he is every day he want to make us more strong. और इतना प्यार करने वाला हमारा पिता है जो हर रोज चाहता है कि हम और ताकत से और मजबूती से बढ़ते चले जाएं। So now I am going to give you the important word of God, how you can come out of your present crisis or problem you are going through. अब मैं आपको एक खास वचन दूंगा जो आपकी इस समय में हालात है, मुश्किल परेशानियों के, उसमें से आप कैसे बाहर आ पाएंगे। So all of us we know our children, if they want to play some games, what type of different types of games are there, they used to protect themselves from the fall. और आपने देखा होगा कि जब बच्चे अलग अलग तरीके के खेल खेल रहे होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं अपने आप को गिरने से। So if they are fall also, they used to use several kinds of the protection things in their body. और कई बार अगर वो गिरते हैं, हम उनके आसपास इतनी तरीके की चीजें लगा के रखते हैं, तकिया लगा के रखते हैं, गद्दे लगा के रखते हैं कि अगर वो गिरे कम से कम उन्हें चोट आए। So many games the children used to play, they used to protect themselves with the things used to protect during the time of the game. और बहुत बार जब बच्चे गिर जाते हैं, वो गेम खेल रहे होते हैं, वो अपने आप को बहुत चीजों से बचाते रहते हैं जो वो खेल रहे होते हैं। So many times if you see in cricket, the batsmen used to wear many kind of the pads and helmet, many things. और जब आप अगर क्रिकेट का मैच आपने देखा है तो आप जानते हैं जो क्रिकेटर होते हैं वो बहुत सारी तरीके की चीजें अपने पैरों पे हेलमेट पहन के रखते हैं हर समय। Dear friends, our Lord is a God who want to give us his armor to protect ourselves. प्रिय मित्रों, मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो हमें ऐसे अपने वो औजार देना चाहता है जिससे हम हर समय ढके रहें। We read the word, the no weapon formed against never prosper. हमने इस वचन को ऑलरेडी जान लिया है कि कोई भी हानि का हथियार आपके लिए नहीं बढ़ेगा। No black magic, no witchcraft will not touch us. कोई भी जादू टोना, कोई भी अगर ऐसी युक्ति है शैतान की, वो आपके ऊपर, याकूब के घराने के ऊपर काम नहीं करेगी। But when we can be protected, that is very important. और कब हम अपने आप को बचा पाएंगे, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। So we should all the time wear the armor of God. हमें हर समय उन हथियारों को पहने रहना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं। It is written in Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. इफिसियों 6 उसका 10 से 18 में ये साफ साफ लिखा है। So all of us, you please stand your Bible. This word of God is very important for every level of believers. आप लोग इस बाइबल के इस अध्याय को खोल लीजिए, क्योंकि चाहे वो कोई भी विश्वासी हो, ये वचन उसके लिए बहुत जरूरी है So in जानना। this word of God, God is speaking to us, my son, my daughter, why you are going through problem, why you are going through sorrows and anxiety and depression. इस I वचन am already blessed you with a special protection of armor of God, nothing will touch you. इस वचन में परमेश्वर साफ साफ हमें ये बात सिखाता है, मेरे बेटे मेरी बेटियों, क्यों परेशान हो, हर समय इन हथियारों को पहने रहो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं हानि से बचने के लिए। So the verse 10, Ephesians 6:10 says, finally, dear children of God, be strong in the Lord and in his mighty power. 6:10 इस तरह से कहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटियों, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लो परमेश्वर में। So how we can become the strong in the Lord? अब हम परमेश्वर में कैसे मजबूत हो जाएं? Through our prayer life. अपनी प्रार्थना के जीवन से, So through our Bible reading time. हमारे बाइबल पढ़ने के समय से, Through the strength of the Holy Spirit, be filling with the Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और जितना हम भरते चले जाते हैं So उससे। this should be our daily practice of our life. और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की एक आदत होनी चाहिए। So not even a one thing should not missed out from our life every day. एक भी इसमें से कोई भी चीज, एक भी चीज हमारे जीवन से रोज उसे मिस नहीं करना है। Your prayer time is very scheduled and punctual.
your Bible reading time and the filling with the Holy Spirit. And if you are filled with the Holy Spirit, you can speak more in the heavenly language, pray in the heavenly language, the unknown tongues more and more. This will help you to be strong in the Lord every day. आपके बाइबल पढ़ने का एक समय होना चाहिए, प्रार्थना करने का एक समय होना चाहिए। अगर आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप अपनी आत्मा में और भी स्ट्रांग हो जाएं। So because every one of us, we should be filled with the Holy Spirit and we have to speak the heavenly language as per the Bible. बाइबल कहती है कि हम सबको उस पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है, ऐसा वचन कहता है, और हमें उसमें प्रार्थना करनी है। So whenever you are praying in the Holy Spirit, in the heavenly language, the evil powers will not touch you. They will never have a thought about you because you are strong in the Lord and in the mighty power. और जब आप पवित्र आत्मा भर के उस प्रार्थना को करते रहते हैं, अन्य भाषाओं की प्रार्थना को, तो कोई भी शैतानी चालें आपके ऊपर नहीं काम कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं और आप अपनी आत्मा में बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत ही मजबूत हैं। So the World Cup cricket match, the batsmen used to be well trained and be strong for their team and for their nation. He can only able to stand against the bowler. अगर हम क्रिकेट मैच को देखते हैं, जो वहां पे जाते हैं लोग, वो इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाने के लिए कि हम इस देश से आए हैं, और वो तैयारी के साथ वहां पे खड़े होते हैं। That's why very clearly this word of God says, Ephesians 6:11, the next word says, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme and plans. इफिसियों 6:11 साफ साफ कहता है कि परमेश्वर के उन हथियारों को अपने ऊपर बांध लो ताकि शैतान की कोई भी युक्ति के खिलाफ आप खड़े रह सको। So we should be very strong because the devil, the evil, is a liar. He is a roaring lion. He used to watch where there is a gap to attack. और जो शैतान है वो बहुत ही चालाक है, वो एक चिल्लाते हुए शेर के जैसे हर समय हमें देखता रहता है कि कहाँ हम कमजोर हैं, और वही वो हम पे मौका पाके हमारे ऊपर हमला करता है। So sometimes we used to be so tired and we used to miss our prayer time and reading the Bible. और कई बार हम बहुत थक जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते और ना ही हम बाइबल को पढ़ते हैं। So that time the devil will be very clever. He's all the time he's watching over us. He used to attack us. और जो शैतान है वो बहुत ही चालाक है, वो क्योंकि वो हर समय हमें देखता रहता है, वो देखता है यहाँ है ये कमजोर है और अब इनको मारने के लिए उतरो। That's why, dear friends, we need a full protection. The Bible very clearly says, Ephesians 6:11 says, put on the full armor of God. You should be stand against the evil scheme. इसलिए प्रिय मित्रों, हर समय उस हानि के हथियारों को हमें अपने ऊपर बांधे रहना है ताकि हम शैतान की हर चालों से, उसकी हर युक्तियों से हमेशा बचे रह सकें। Because the devil used to create a problem in different ways. क्योंकि जो शैतान है वो अलग अलग तरह की मुश्किलें आपके जीवन में लाता रहेगा। So for that we have to put a full armor of God. इसलिए हमें परमेश्वर के वो सारे हथियारों को, सारे के सारे हथियारों को अपने ऊपर बांध लेना है। Several times the devil used to attack us from the backside. और बहुत बार वो हमें पीछे से मारने की कोशिश करता है। Several times through our eyes. और कई बार आंखों से, Several times through our mind. और कई बार दिमाग से, Several times through our mouth. और कई बार हमारी जुबान से, Several times with the evil word is coming out from our lips. और कई बार बुरी बुरी बातें हमारे मुंह से निकलती रहती हैं। Several times by the speech of our tongue. और कई बार हम ऐसी कड़वी बातें बोलते हैं अपनी जुबान से। So that's why here the Bible says we should be with the full armor of God to face the devil at any time. और इसलिए बाइबल साफ साफ कहती है हर समय उन हानि के हथियारों को पूरी तरह से ऊपर बांधे रहो ताकि आप उस शैतान के खिलाफ खड़े हो सको। So if one batsman is playing to do the bat, he should know about the team, their strength, how they are, how the speed ball, how the spin, everything they should know that, then only they can able to stand and play. जो लोग क्रिकेट खेलते हैं और जो बैटिंग कर रहे होते हैं, उन्हें उस टीम के बारे में पूरा पता होता है। उन्हें पता होता है ये पिच कैसी है, उन्हें पता है बॉलर कैसा है, उन्हें पता है ये कैसी बॉल फेंकेगा,
उन्हें इन सारी बातों की जानकारी अच्छे से होती है। Dear friends, our Lord is a God who is so caring for us. The word 12th very clearly says, Ephesians 6:12 says, our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of the evil in the heavenly realm. प्रिय मित्रों, मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बहुत ही प्यार करने वाला परमेश्वर है, और उसका 6:12 इस तरह से कहता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो मांस से नहीं आई है। हमारा जो लड़ाई है वो इंसानी लड़ाई नहीं है, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। You should well understand the battleground of you. आपको खास तौर से अपने उस लड़ाई के मैदान को अच्छे से जान लेना है। We can't think that this way only I can face, not like that. We have to know everything thoroughly. हमें इस तरह से नहीं समझना कि शायद ऐसे ही हो जाएगा, पर आपको उसके बारे में सब कुछ समझ होना चाहिए। You see, the devil, he is a liar and he used to use his tricks. Sometimes he used to target us from the above. और हमें पता होना चाहिए कि जो शैतान है वो झूठा है, और वो ऐसी ऐसी योजनाएं हमारे ऊपर बनाता है, फेंकता है, कई बार वो ऊपर से फेंकता है, तो हमें ध्यान रखना है। Several times he used to stop the God's blessings coming from the above, the spiritual blessings. और कई बार वो हमारी आत्मिक आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी होती हैं, वो आ रही होती हैं, और वो उन्हें रोक देता है। Several times our mind will receive the devil's signal instead of the Holy Spirit signal. और बहुत बार हमारा दिमाग वो शैतानी बातें लेता रहता है, ना कि परमेश्वर की बातें जो वो हमें भेज रहा होता है। Because he knows if face to face through our own hand, if we can't fight, that's why he is disturbing us from the heavenly realm. क्योंकि वो जानता है कि अगर वो हमारी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, तो वो इस तरह से हमारे दिमाग पे अटैक करता है। So today, as a believer of God, you can easily come out of the problem you are going through. अगर आज आप विश्वासी हैं, तो आप आसानी से इन परेशानियों से निकल सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। Put full armor of God. परमेश्वर के सारे हानि के हथियार अपने ऊपर बांध लीजिए। You should all the time know your battle, how the battle, how much the power they are having, everything you should know. आपको उस लड़ाई के बारे में जो आपके जीवन में चल रही है अच्छे से पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि वो कैसे और कैसे लड़नी है आपको। So this word 13 very clearly says, therefore put on the full armor of God, so that when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. और 13 वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर के वो पूरे हथियारों को अपने पर बांध लो, ताकि वो जो शैतानी दिन जब तुम्हारे जीवन में आएगा, वो जो जगह परमेश्वर ने आपको खड़े होने के लिए दी है, आप उस पे खड़े रह सकोगे, डटे रह सकोगे। Dear friends, we are living in the end time. The preparation for the second coming of the Lord is happening in a very speed way. प्रिय मित्रों, आपको पता है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी में हैं। Everywhere there is a threat for the people's lives. और हर जगह लोगों के जीवन के लिए एक मुश्किल है। So everywhere there is a kind of a alert for the earthquake. हर जगह इस बात को बता दिया गया है कि भूकंप आ सकता है। Because these are the evil days, we have to all the time wear the armor of God. क्योंकि ये वो शैतानी दिन है, और इस समय में खास तौर से हमें परमेश्वर के इन हथियारों को अपने ऊपर बांध के रखना है। So there is a 7 type of the armor of God written in the coming following verse. बाइबल में 7 तरह के इन हथियारों के बारे में लिखा गया है। So verse 14, the first one, the Bible says, Ephesians 6:14, stand firm with the belt of the truth buckled around your waist. और इफिसियों 6:14 कहता है कि जो सत्य से अपनी कमर को कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। So belt of the truth buckled around the waist. मतलब वो सच की जो बेल्ट है आपको बांधनी है अपनी कमर के ऊपर। So this is the belt of truth.
और ये वो सच्चाई की बेल्ट है। So that means truth and faith used to be very much needed for our day-to-day life to face the battle. इसका मतलब है सच्चाई और आपका विश्वास जरूरी है रोजमर्रा की उस लड़ाई को लड़ने के लिए। So if you see kind of the boxing games, the people, those who are playing, they used to wear a belt and their entire strength will come up into their body to fight. आपने अगर बॉक्सिंग को देखा है तो वो लोग एक खास तरीके की बेल्ट अपने कमर पे बांध के रखते हैं ताकि वो बहुत ही स्ट्रांग रहे और वो ताकत के साथ लड़ते हैं। So we need a belt of truth. और इसी तरह हमें उस सच्चाई की कमरबंद को बांधना है। The same word 14, the another part says with a breastplate of righteousness in place. और इसी वचन का एक दूसरा भाग ये भी कहता है कि वो हमें अपनी छाती पे भी वो ब्रेस्ट प्लेट बांध लेनी है। So because this is very powerful protection weapon for every believers. और ये बहुत ही एक खास तरीके का बचाने वाला हथियार है हर विश्वासी के लिए। So the breastplate used to protect our heart. और जो हम ब्रेस्ट प्लेट अपने ऊपर बांध लेते हैं, आपने लड़ाइयों में देखा होगा, तो वो हमारे दिल को बचाता है। The devil all the time used to attack our heart through many ways. और जो शैतान है हर बार आपके दिल पे घात करना चाहता है अलग अलग तरीकों से। The breastplate will protect your heart. और वो ब्रेस्ट प्लेट आपके दिल को बचाती है। So we should be very much have this breastplate. Bible very clearly says it is the righteousness of the breastplate of righteousness. और ये बाइबल साफ साफ कहती है कि वो धार्मिकता की झीलम हमें पहने रहनी है अपनी छाती पे। So righteousness will come only through the Holy Spirit. और धार्मिकता सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आपको मिलती है, पवित्र आत्मा के द्वारा। You should be filled with the Holy Spirit and the breastplate of righteousness will be given to you. आप हर समय पवित्र आत्मा से भरे रहें और ये धार्मिकता की झीलम आपको दी जाएगी। So number 1, belt of truth. पहला है उस कमरबंद के बारे में। Number 2, breastplate of righteousness. नंबर 2, उस झीलम को जो आपको अपनी छाती पे बांधनी है। The next word 15. Number 3, with your feet fitted with the shoes for your feet, readiness that comes from the gospel of peace. और उसका 15 वचन कहता है कि पाँव में आपको जो जूते पहने तैयारी से पहन के रखने हैं सुसमाचार के लिए। So our feet should be with the feet fitted all the time. और जो आपके जूते हैं वो बिल्कुल तैयार और आपके साइज के होने चाहिए। It's a kind of a ready alert all the time. The 100-meter runners in the Olympic, they used to be run like anything. Their shoes will be all the time tight and ready to push them up to go ahead. ये ऐसे उन लोगों के लिए जो दौड़ते हैं, और उनके जूते अगर आपने देखे हैं खास तौर के वो पहन के रखते हैं, हर समय तैयार और टाइट होते हैं जब वो उस रेस को दौड़ते हैं। So this kind of the feet fitted, the shoes of the it is coming from the gospel of peace. और जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये उस सुसमाचार की शांति के वचन के द्वारा होता है जो हम तैयारी से खड़े रहते हैं उसको पहन के। So the number 4, the armor of God, it is written in 16 word. और चौथा वो परमेश्वर का जो हथियार हमारे लिए है वो 16 वचन में है। Ephesians 6:16 says, take up the shield of faith. और इफिसियों 6:16 कहता है कि उस ढाल को पहन लो। So the shield of faith, it should protect all the arrows of the devil. और जो वो ढाल है विश्वास की, वो जो कोई भी आपके तरफ जो तीर फेंका जाएगा वो आपको बचाएगा उससे। So very clearly the Bible says, take up the shield of faith which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में वो विश्वास नहीं है तो आप कैसे इसको बचाएंगे? तो वो विश्वास आपके पास होना चाहिए कि जब मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतान कुछ भी मेरे पे फेंकेगा वो मेरे तक नहीं पहुंचेगा। ये बात आपको विश्वास से पता होनी चाहिए। Shield of faith, the Bible very clearly says, when our faith will increase by hearing the word of God, by speaking the word of God. और बाइबल साफ साफ कहती है कि हमारा विश्वास बढ़ता जाता है जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उससे बोलते हैं। So the shield of faith should be word of God. और जो ये ढील है, जो ये ढाल है, ये है परमेश्वर का वो वचन। So it will protect you from all the arrows of the devil. और ये आपको बचाता है वो तीरों से जो शैतान आपकी ओर फेंकता है।
So the shield of faith is very important for every one of us. और ये जो ढाल है विश्वास की हर विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी है। So number 5, the armor of God, the fifth armor of God, the word 17, take the helmet of salvation. और इसका पांचवा ये कहता है कि हथियार वो है कि उस हेलमेट को, उस टोप को पहन लेना है। Dear friends, the head created by God with the very minute things. आपको पता है प्रिय मित्रों, जो ये हमारा दिमाग जो परमेश्वर ने बनाया है, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं। That's why when there is a small injury in the head, the body used to affect a lot. और अगर इसमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, हमारे पूरे शरीर में गड़बड़ हो जाती है। So that's why everywhere those who are going to in the two-wheeler, they used to wear a helmet to protect their head. और जहाँ कहीं आपने देखा है जो लोग स्कूटर चलाते हैं टू व्हीलर, वो इसलिए अपने दिमाग को बचाने के लिए उस हेलमेट को पहन के रखते हैं। So here the helmet means the salvation. और यहाँ पे जो हम उस हेलमेट की बात कर रहे हैं, वो आपके बचाए जाने की बात हो रही See, है। every day we should renew, we should thanking God for our salvation. और हर दिन हमें इस बात को याद रखना है कि हाँ, मैं प्रभु यीशु में बचाया गया हूँ। Several times we are going through lots of worries and sorrow for the worldly things. और बहुत बार दिन में हम रोज बहुत सारी परेशानी, दुखों में चले जाते हैं इस संसार की वजह से। But God's expectation is we should thank God for the salvation. Lord, you saved me through the precious blood. This should be your everyday statement. और परमेश्वर ये चाहता है कि हर दिन हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर तूने मुझे बचा लिया है, मेरा उद्धार कर दिया है, और ये वचन हमें अपने ऊपर बोलते रहना चाहिए। All the time you should thank God for the salvation. Lord, you only brought me from the land of the land of this addiction, the land of the slavery. Now I am free from sin, Lord. Thank you for the salvation. हर समय अपने में उस उद्धार के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता रहना चाहिए कि आपने हमें उस बुराई के जीवन से, उस शराब के जीवन से, उस अंधकार के जीवन से, जादू टोने के जीवन से निकाल के आजादी में ले आए हैं। How much you are thanking God for your salvation, your helmet will be more strong. जितना आप धन्यवाद करेंगे अपने उस उद्धार के लिए, जो ये हेलमेट, जो ये टोपा आपने पहना है, वो उतना ही मजबूत होगा। So this is exactly Psalm 91:10. और ये वचन भजन संहिता 19 उसका 10 कहता है। So Psalm 91:10 says, no sickness will touch you. और ये वचन इस तरह से कहता है कि कोई भी बीमारी आपको नहीं छुएगी। No sickness will enter your home. और कोई भी बीमारी आपके घर के अंदर नहीं जाएगी। Because there should be a salvation helmet should around you and in your family and your home. क्योंकि वो उद्धार का जो आपको दिया गया है, वो टोपा आपके घर में और आपके परिवार में दिखाई देगा उस बीमारी को। How the evil spirit, the witchcraft will enter you and your home. और जब वो उस उद्धार को देखेगा तो कोई भी जादू टोना, कोई भी बुराई आपके घर में नहीं आ सकती है। The salvation will be your wall. और जो वो उद्धार है वो आपके लिए एक ईंट की एक ऐसी दीवार होगा। All the time the salvation and praise will be your protecting wall. और हर समय वो उद्धार की बातें और आप जो आराधना करेंगे वो आपके लिए एक दीवार बन के खड़े हो जाएंगे शैतान के खिलाफ में। All the time you should increase and thanking God for your salvation. हर समय आपको अपने उस उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। I am a new creation, the old things are gone. आपको ये याद रखना है, आप एक नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें आपके जीवन से बीत गई हैं। I am not a poor, I am a rich in Christ. आप गरीब नहीं हैं, आप परमेश्वर यीशु मसीह में बहुत ही अमीर हैं। I am not a weak, I am a strong. आप कमजोर नहीं, आप बहुत बलवान हैं। So this will increase your protection, dear friend. और ये बातें जब आप अपने ऊपर बोलते हैं, आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन को बचा अपने सामने खड़ा कर देते हैं। The sixth armor of God, the same word, 17th word, the later part says, the sword of the Spirit, which is the word of God. और छठा जो हथियार है वो इसका 17 के दूसरे भाग में है, वो कहता है वो जो तलवार है वो है। This is the only weapon to attack our enemies. और ये वो एक हथियार है जिससे हम शैतान को घात करते हैं। Whatever problem you are going through, court cases, unwanted disturbance, no peace in the family, no money in the family, the sword you should ready to use
with the help of the Holy Spirit. चाहे आपके घर में कोई भी मुश्किल क्यों ना हो रही हो, इस समय में पैसों की, कोर्ट केसों की, उस तलवार को उठा ले और शैतान को काट डालें उससे। So because the sword of the Spirit, which is the word of God. और ये जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है। Hebrew 4:12 exactly written, the word of God is the two-edged sword. इब्रानियों 4:12 इस तरह से कहता है कि जो परमेश्वर की तलवार है वो दोधारी तलवार है। So you should all the time filled with the word of आप God. हर समय परमेश्वर के उस वचन से भरे रहें। If you are feeling some kind of a disturbance, immediately you have to use the promises of God, and you should full of the sword of Spirit, which is the word of अगर God. किसी भी समय आपके दिमाग में कोई परेशानी की बातें आती हैं, आपको वचनों को, परमेश्वर के वादों की तरफ मुड़ना है और अपने दिमाग को उसके वचनों से दोहरा दोहरा के भर लेना है। So finally, the seventh armor of God, word 18 says, pray in the Spirit, pray in the Holy Spirit on all occasion. और उसका सातवां जो हथियार है वो कहता है, जो 18 आयत में लिखा है कि हर समय हमें अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहना So है। praying in the Holy Spirit is very important. अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। So the sixth armor of God, it is well connected with the praying in the Holy Spirit. जो छठा हथियार है वो सीधी तरह से जुड़ा हुआ है जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। So what is the meaning of the praying in the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? So in your mind you should remember the cross, and you should know that Jesus Christ already crushed the head of the Satan under his feet. इसका मतलब है कि आपको हर समय अपने दिमाग में ये याद रखना है उस क्रूस पे जिसमें यीशु मसीह ने श्रापित किया है सांप को और उसे कर्स किया है, उसे श्रापित कर दिया है। So that means the evil already, the devil already totally defeated. I am a victorious person. और ये कहता है कि जो शैतान है वो हार गया है और हम एक जीते हुए लोग हैं। So when you are praying in the Holy Spirit, you will have the positive mind. और जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप एक उम्मीद से भरे रहते हैं। All the time you will be rejoice in the Lord. और हर समय आप परमेश्वर में आनंदित रहते हैं। The Holy Spirit will bring the joy of the Lord in your life. और पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस आनंद को आपके जीवन में भरती चली जाती है। That's why Romans 14:17 very clearly says, the kingdom of God is not a eating and drinking, it is the righteousness, peace and the joy of the Holy Spirit. और रोमियो 14:17 इस तरह से कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाने और पीने के लिए नहीं, बल्कि वो आनंद करने के लिए, उसमें शांति रखने के लिए बनाया गया है। You should be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरे रहें हर All the समय। time you should be full of the armor of God. हर समय आप उन हथियारों को बांधे रखें जो परमेश्वर ने आपके हानि के लिए बनाए Today हैं। you believe all your problems are going to be come to an end. आज आपको यकीन रखना है कि आपकी सारी परेशानियों का अंत हो गया है। Start to pray in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में और प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। In the praying in the Holy Spirit is the enjoying the victory of the Lord Jesus जब हम Christ. प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा में, तो हम उस विजय को यीशु मसीह ने जो हमें दी है उसे सेलिब्रेट करते हैं। All the time you have to celebrate the victory of the Lord. हर समय हमें उसे मनाते रहना है, उस विजय को जो यीशु मसीह ने हमें दे दी है। All the problem will be go away from your life. हर मुश्किलें आपके जीवन से चली जाएंगी। The devil will try to search you to pull down, but he has no ways to touch you. शैतान चाहेगा कि वो आपको ढूंढे, पर उसे वो रास्ता नहीं मिलेगा कि वो आपको छू सकेगा। So this word 18, Ephesians 6:18, pray in the Holy Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests. और 18 इफिसियों 6:18 कहता है कि हर समय कैसी भी परिस्थिति में पवित्र आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते चले जाएं। The same word 18 says, be और- alert and always keep on praying for all the Lord's people. और 18 में ये भी कहता है कि चौकन्ने रहो, प्रार्थना करते रहो सब लोगों के लिए।
So you are going through some problem. आप एक परेशानी से जा रहे हैं, You should pray for the people, those who are going through the same problem exactly you are going through. आपको और लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है जो बिल्कुल आपके जैसी परेशानियों में से होके जा If रहे you are हैं। going through the court case, अगर आप कोर्ट केस से हैं, you have to pray for the people. Lord, how many people are waiting a long year, spending their money for the unwanted things, Lord. Please help them. If you are pray, God will help you to, you will come out of your case. अगर आप और लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग बहुत समय से ऐसे कोर्ट केसों में से होके जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपको वो उसमें से निकालेगा। Dear friend, you should know that you are not alone. प्रिय मित्रों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप लोग अकेले नहीं हैं। You are not an orphan. आप ऐसे त्यागे हुए नहीं The हैं। King of Kings and the Lord of Lords is in you. राजाओं का राजा और परमेश्वर का परमेश्वर आप में रहता He है। already give you the full armor of उसने God. हानि के सारे हथियारों को आपको दिया है। No evil can able to see you and touch you. कोई भी शैतान ना तो आपको देख सकता है और ना ही आपको छू सकता है। Right now you close your eyes and pray to the Lord. आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Whatever may be the problem you are going through. कोई भी परेशानी इस समय में आपके जीवन में हो, Today you come close to Jesus and be filled with the full armor of God. आज आप यीशु मसीह के पास आ जाए और उसके हथियारों को जो उसने आपके लिए बनाए हैं पूरी तरह से पहन लीजिए। Come close to the cross of Jesus Christ. यीशु मसीह के उस क्रूस के पास चले आइए On the body of Jesus Christ from head to toe full of wounds. और देखिए उस परमेश्वर के उस शरीर को जो ऊपर से लेके नीचे तक जो उस लहू से, उस खून से लथपथ है। There is a full of wounds and stripes on the body of Jesus Christ. उसमें बहुत सारे जख्म हैं और छोटे हैं जो कोड़े हैं जो उसने हमारे लिए खाए हैं। Come and just thank God, Lord, for me you took all the stripes and wounds upon you. हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर तूने उन कोड़ों को खाया, उन जख्मों को खाया मेरे लिए। Lord, give me the armor of God. परमेश्वर उन हथियारों को पहनने की समझ मुझे दे दे। Several times, Lord, the evil is disturbing me. बहुत बार शैतानी बातें मुझे परेशान करती हैं। There is no peace in our home. हमारे घर के अंदर शांति नहीं है। Lord, we are planning to go ahead, but every time we are coming back, we are coming down in our हम life. जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही हम बार बार नीचे गिराए जा रहे Lord, हैं। there is no blessings, कोई Lord. आशीष हमें दिखाई नहीं दे रही। Lord, different kind of a locust came and take away our blessing. अलग अलग तरीके की परेशानियां हमारे जीवन से उन अच्छी चीजों को खाती जा रही हैं। Lord, restore our peace, Lord, today. परमेश्वर हमें बचा ले और वापस कर दे वो शांति जो तूने हमारे लिए ठहराई है। How many of you are ready to be filled with the Holy Spirit कितने लोग हैं today? इस समय में जो पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हैं? Open your mouth and ask the Lord, fill me, Lord, with your अपनी Holy जुबान को खोलिए और Spirit. मांगे परमेश्वर से कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Open your mouth and ask the Lord Jesus, fill आप अपनी me. जुबान को खोलिए और बोले, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। The Bible says, when the Holy Spirit come upon you, you shall receive the और power. बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा और आप उस सामर्थ को, उस ताकत को अपने जीवन में, अपने शरीर में पाएंगे। Now the heaven is opening. और जो स्वर्ग है आपके लिए खुल रहा है। The glory of the Lord is coming and परमेश्वर की filling महिमा आपके you. ऊपर उतर रही है और आप लोगों को भर रही है। Be filled with the Holy Spirit पवित्र आत्मा now. से भर जाए इस समय में। If God filled with the unknown tongues, the gift of tongues, speak in the heavenly language उस अन्य भाषाओं के now. वरदान से लोग भर रहे हैं और उसमें आप प्रार्थना करें। Today is the day of your आज deliverance. का दिन है जो छुटकारे का दिन है। The devil is totally destroyed by the power of the Holy जो शैतान है Spirit. पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Now the Holy Spirit is set you free. आज पवित्र आत्मा आपको आजादी दे रही है। You will not go back to your old problem आप anymore. पुरानी बुराइयों में, उन परेशानियों में दोबारा नहीं All the जाएंगे। evil spirits are already gone from your आज दुष्ट आत्माएं life. आपके जीवन से चली गई हैं। All the evil spirit get out from your children's हर life. बुराई की आत्मा आपके बच्चों के जीवन से चली जाए। Now the armor of God is coming upon परमेश्वर you. के वो हथियार आपके ऊपर उतर रहे हैं। Receive the armor of God through the Holy Spirit परमेश्वर के उस now. आत्मा
के हथियारों को ले लीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। Now the deliverance is happening in your आप life. लोगों के जीवन में छुटकारा हो रहा है। The Holy Spirit is delivering पवित्र you. आत्मा आप लोगों को छुटकारा दे रही है। All the sinful thoughts controlling you is destroying by the power of the Holy हर Spirit वो बुराई के now. विचार आपके दिमाग पे जो आते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा वो नाश करे जा रहे हैं। All the bad dreams coming in your mind in the night time is going away right जो भी now. शैतानी सपने आपको रात को आते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा खत्म हो रहे हैं। All the debts problem in your family is now the Lord is changing into blessing today. जो भी कर्जे हैं परिवारों के ऊपर परमेश्वर उसे आशीषों में बदलने जा रहा है। All the false cases done by the evil people, the Lord is going to give you the favorable verdict and withdraw the case by the power of जो God. झूठे केस है परमेश्वर आप पे अनुग्रह कर रहा है और आपको उसमें आशीष देके बाहर निकालेगा। Everywhere the grace of the Lord is coming upon you right हर now. चारों तरफ से परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन पे ले लीजिए। Today is the day you have to grow in the Holy आज वो Spirit. दिन है जो आपको पवित्र आत्मा में बढ़ जाना है। How many of you are not able to pray and read the Bible? कितने लोग हैं जो अभी भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं और प्रार्थना में नहीं बढ़ पा रहे हैं। Now the armor of God is coming upon you. Receive your blessing today. परमेश्वर के वो हथियार आपके लिए दिए जा रहे हैं और उन आशीषों को आप अपने जीवन में ले लीजिए। You are going to pray more. और आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करेंगे आज से। You are going to read the Bible आप more. ज्यादा वचनों को पढ़ेंगे। The Lord will all the time give you the full armor of God. परमेश्वर हर समय उन हथियारों को आपको दिए रखेगा। No devil, no evil can't touch you कोई भी anymore. शैतान कोई भी उसका पार्टी आपको छू नहीं सकती है। All the time the salvation, the wall of salvation will protect वो you. उद्धार का वचन जो परमेश्वर है वो तेरी रक्षा करेगा। The word of God is going to be a two-edged sword surrounding you all the परमेश्वर time. का वचन आपको पूरी तरह दीवारों के जैसे घेरे रखेगा। All the time you will be praying the Holy हर Spirit. समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते चले जाएं। Thank you, Lord, for your blessings, Lord. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। Lord, we pray you believe all the sicknesses in your body already gone away by the armor of आपको God. यकीन करना है कि जो भी बीमारी है आपके शरीर में यीशु मसीह के द्वारा उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको छोड़ के गई है। Just believe and confess your faith. I am surrounded with the armor of God. अपने विश्वास को मुंह से बोले और कहे कि मैं उन हथियारों से घिरा हुआ हूँ। I am healed by the blood of यीशु Jesus. मसीह के उस लहू के द्वारा मुझे चंगाई मिली है। I am healed by the stripes of Jesus. यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। I am healed by the word of मैं God. परमेश्वर के वचन से चंगा हुआ हूँ। I am healed by the power of the Holy परमेश्वर की Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं चंगा हुआ हूँ। I am a strong person आज today. मैं बहुत ही सामर्थी विश्वासी I am हूँ। full of the armor of मैं पूरे God. हथियारों को पहने हुए हूँ। No evil enemy can see me कोई भी anymore. बुराई और बुरे लोग मुझे देख नहीं सकते हैं। No spirit of jealous can touch कोई भी me. जली की स्पिरिट मुझे छू नहीं सकती है। No any worldly spirit can touch कोई भी me. शैतानी आत्मा मुझे नहीं छू सकती है। My body is the temple of the Holy मेरा Spirit. शरीर पवित्र आत्मा का घर है। The Holy Spirit is living in me. वो मेरे अंदर रहती है। I belongs to Jesus. और परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करें। I belongs to मैं Jesus. यीशु मसीह से हूँ। Thank you, Lord, for answering our prayer. धन्यवाद यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।